भाई दो जगह गया है। रिंकी जी, गुड मॉर्निंग फ्रॉम ग्वालियर। हैप्पी दिवाली भैया। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। सो दिवाली, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली अंकित जी। हैप्पी दिवाली ऑल सर, ऑफ यू। हैप्पी दिवाली। तो कैसा चल रहा है? हाउस लाइफ, हाउस इट गोइंग? हाउस बहुत अच्छा, बहुत बहुत ही बहुत उम्दा। बात है क्या, बहुत दिनों बाद रविंदर सर को देखा है, मजा आ गया आज तो। और ये वो भी अच्छा लग रहा है because you know I'm back in my own home and it's a world of difference especially for Diwali. तो मेरा सब स्ट्रेस एकदम गायब हो गया जैसे मेरे घर में आ गया। बहुत बढ़िया सर, सुपर सुपर। कैसा कैसा लग कैसा रहा है आपको घर में आके वापस से? Oh, Ankit ji, I cannot describe. It is like, I mean, literally like getting back in heaven. वाह You वाह। know, the home we were in, temporary home was very close, but it was very depressing and very dark. हमारे इतने चारों तरफ इंडोर लाइट है and beautiful view, so we missed that a lot. But वेरी गुड। now we appreciate our home even more. सो जर्नी जर्नी को डिस्क्राइब करो ना थोड़ा सा। हाउ वाज द जर्नी, हाउ इट हैपन, कैसे था? इट वाज टफ, इट वाज बिकॉज क्या होता है जब कोई नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस आते हैं, एक इमोशनल सुनामी आता है, तो वो है ना, मतलब पूरा पूरा कहते हैं ना, परीक्षा ले लेता है आपके आपके पेशेंस की, आपके ग्रैटिट्यूड की, आपके नॉलेज की, सारी की परीक्षा आता है। और वो भी ठोक बजा के, ठोक ठोक रोजाना ठोक ठोक बजाता है। डेली चैलेंज आता है, डेली एक इमोशनल सुनामी दिल में उठता है, और मन में आपको मन उसको शांत करता है वापस से। थोड़ा उसकी जर्नी, थोड़ी उसकी थोड़ा इलाबरेट कर सकते हो? It was probably the worst experience of my life. मैं ये जो मैंने experience किया किसी के लिए भी I won't wish that. You know, out of we have 3 floors, basement and main floor were completely damaged, but water all night. तो जब सुबह उठे तो actually I'm saying what has happened? And so there we are in a temporary home, which was, as I said, very depressing. Every day was a challenge. Every day was a challenge. Um, and every day I had to tell myself what is in my control. And that's what I will do, which is focus on getting my home fixed back to even better. We actually did some even upgrades as long as we're doing that. And every day I would write, gratitude was a big, big help. I'm telling you, without gratitude, it would have been more difficult. Not a single day it stressed me. I missed writing gratitude or even doing my everything. I mean, everything you guys taught, you know, वाह meditation, gratitude, morning and night, sote samay bhi. And that is what kept me going. सुपर। And ऐसे लग रहा था कि will I ever make it? There were days when I thought, will I make it through all of this? But then I tell myself, oh, Sarita, ki, no, we're going to make it. It was a tough journey, but the good news is, as soon as I got home, it was all over. It was a situational, it's a situational depression, you can call it. You know, it was a specific सर situation. ये डिप्रेशन वर्ड तो अपनी जिंदगी, अपनी डायरी में डिलीट हो चुका है। नहीं नहीं मैंने हाँ। I mean this is how let me ये तो describe it. बात ही मत करो आप। ये वर्ड, हाँ ठीक है, एक चैलेंज था। और It was a big challenge. विक्ट्री फीलिंग कैसी आ रही थी? विक्ट्री फीलिंग जब Oh, आप घर में tremendous. घुसे थे, तब वो वाली एकदम फीलिंग कैसी थी? It was such a jubilant celebration once we came here. और साथ में दिवाली हो गई और मेरी छोटी वाली बेटी की engagement हो गई. Everything came together. वाह You know, वाह वाह सर, वाह वाह। at the same time after we came here. So it was a wonderful experience. They were all here. मेरी दोनों बेटियां, her fiance, they were here. We celebrated Diwali together. Absolutely full scale, you know. वाह वाह। सो मैं सर के एग्जाम्पल से टोटली रिलेट कर पा रहा हूँ। उसका रीज़न ये है, ये इमोशनल सुनामी है ना, हर एक के जीवन में आता है, हर एक के जीवन में आता है। और आपने चाहे ग्रैटिट्यूड या हम साथ करा है या नहीं करा है, इमोशनल सुनामी आता है। टफ चैलेंजेस, सिचुएशनल चैलेंजेस आते हैं लाइफ के अंदर, बट वो परमानेंट नेचर में नहीं होते, वो इम्परमानेंट नेचर में होते हैं। बट हम एज अ ह्यूमन बीइंग, हमारी कुछ आदतें हैं, हम उसको परमानेंट लेके बैठ जाते हैं हमारी लाइफ के अंदर।
कि बस यही हमारी ज़िंदगी है, अब हम तो फँस गए, हमारे साथ कितना बुरा हो गया। और कुछ ग्रैटिट्यूड वाले तो ऐसे होते हैं कि यार ये हमारे साथ ही क्यों हुआ? व्हाई अस? उसके पीछे भी कुछ ना कुछ रीज़न होता है। अगर आपको भगवान ने इमोशनल चैलेंज दिया है, तो कहीं न कहीं आपकी ग्रोथ चाहता है वो। राजेंद्र सर, मुझे बस इतना सा जानना है कि आपका जो एक मेंटल लेवल है, मेंटल लेवल ऑफ पेशेंस, फोकस कितना ग्रो हुआ इस टफ चैलेंज से? अगर आप निकले हो तो हाउ मच यू हैव ग्रोन फ्रॉम इट? Tremendous. I mean, I'm ट्रिमेंडस। telling you, I kept telling myself, this is one of some of the things I repeated. There are a lot of things. I have several pages. They are laminated, and I would go through that every day. वाह! Remind myself, कि this is in this moment, this is where I'm supposed to be. वाह! This, वाह! this is where I'm supposed to be, and I learn from it and grow from it. Nothing, everything is temporary. I would repeat, everything is temporary. If things are going well, enjoy it. If they're not going well, they're not going to last. They're going to change. So सुपर! many things that I repeated myself every day. I mean, I've grown now. मुझे मतलब आदत हो गई है वो. वाह! Every day I still do that. तो तो मैं आपको बताऊं कि ये राजेंद्र सर की जो वॉल ऑफ ग्रैटिट्यूड है ना, वॉल ऑफ, नाम दे दिया उनकी, वॉल ऑफ नॉलेज या वॉल ऑफ ग्रैटिट्यूड, कुछ भी बोलो। उन्होंने मुझे फोटोग्राफ भेजी थी जब मेरी इनसे बात हुई थी, तो उन्होंने बोला इसको अंकित भाई ये मेरी नॉलेज है और मेरा फोकस इस पे रहता है, और कहीं पर भी मैं अटकता हूँ तो मैं उस वॉल को देख लेता हूँ, उसमें से कुछ ना कुछ मेरे को मिल जाता है टू बाउंस बैक ऑन दैट एनर्जी लेवल। तो वो उन्होंने लेके चले थे। राजेंद्र सर वो सबके लिए डाला ना एक बार ग्रुप में, अगर सब लोग इसको अगर कुछ Okay, एटलीस्ट दे कैन फॉलो। थैंक यू वेरी मच। और ये जो इमोशनल सुनामी होता है ना, इसमें ना दो दिमाग चलते हैं, दो दिमाग। एक दिमाग होता है जो फॉरवर्ड थिंकिंग का होता है, जो बोलता है कि इससे निकल जाएगा, और एक दिमाग होता है क्रिटिक। क्रिटिक क्या करता है? क्रिटिक का काम क्या है? वो ये बोलता है कि ये नहीं हो पाएगा, ये तू नहीं कर पाएगा, ये होगा कैसे, क्यों होगा, कैसे होगा। होता है या नहीं होता है? दो दिमाग होते हैं या नहीं होते इन एनी एनी चैलेंजेस? Yes. बिल्कुल होते हैं ना। What made what made it difficult for me, because the construction company became a challenge. Actually, that was the biggest challenge. I coped with everything. They gave me a lot of trouble, but even there I dealt with that. And it, एग्रीड, नो मैं इशू। पीछे तो मुड़ के देखा ही नहीं, विजय. And once you talk, remember you called me one time and you told me what to do, and I was doing all of that also. Every day I would also write, कि I'm already in my home and I'm doing this. सुपर। You know, सुपर। एंड इट केम एट सच अ नाइस ओकेजन, दिवाली। मतलब इट केम, मतलब आज आपकी जो शेयरिंग आ रही है, इट केम एट सच अ नाइस ओकेजन, दिवाली। मतलब दिवाली बन गई, मज़ा आ गया। yesterday also I had a good sharing on my phone. Somebody bought a Tesla. It was amazing. And जो मेरा इतना सा कहना है, ये इमोशनल सुनामी आएगी, इससे हारने की ज़रूरत नहीं है। दो दिमाग होंगे, एक दिमाग बोलेगा कि यार निकल जाओगे, हो जाएगा, और दूसरा क्रिटिक दिमाग जो उस समय ओवर पावरिंग वाले स्टेज में होगा, आपको बार बार आपकी एनर्जी को नीचे लेके आएगा, बार बार आपकी एनर्जी को नीचे लेके आएगा। आपको तीसरा दिमाग एक और पैदा करना पड़ेगा, अपने दिमाग में अपना जिनी पैदा करना पड़ेगा, और वो जिनी आपकी सारी विशेस आपको ग्रांट करेगा। यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन जिनी। आपको जिनी की बात सुननी पड़ेगी, और जब जब आप वो जिनी की बात सुनते रहोगे, आप निकल जाओगे। एक वक्त आएगा, जैसे राजेंद्र सर का आया, कि यार वो घर में घुसे, उनको वो जो स्ट्रगल थी घर में घुसने की, उसमें जो उनको तकलीफ हुई, वो सब भूल गए, एंड इट केम एज अ विक्ट्री टू हिम। तो वही चीज़ आप लोगों के साथ होगी। उसमें अटकना नहीं है, रुकना नहीं है, थमना नहीं है, बस चलते रहना है। एंड आई नो इट्स टफ, बिकॉज वो हमारे साथ भी होता है। वी ऑल्सो गो थ्रू दैट फेज विच इज, मतलब मैं तो इसको इन्जॉय करता हूँ आजकल। अगर मेरे को कोई टफ चैलेंज आता है तो आई रियली इन्जॉय इट, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है यूनिवर्स ने इसको मौका दिया है टू इन्जॉय इट। इट्स नॉट अ चैलेंज, इट्स अ ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। इट इज़ ग्रोइंग, इट इज़ मेरे को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रही है, मेरे माइंडसेट को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रही है। तो वाई शुड आई क्राई? मैं रोऊं क्यों? मेरे को तो खुश होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा माइंडसेट ग्रो हो रहा है। यस और नो? yes, yes, absolutely. The other thing I did every day, Ankitji, I made sure that I counted all my blessings. यस, दैट्स द Not मेन only थिंग। write it, what I have rather than what I don't have. I have a home where I can live.
a temporary home. I mean, so many things that I counted every day, and that's what kept us going. सुपर सर, सुपर सर। ब्लेसिंग्स आपका कंपस की तरह काम करती है इस इस बवंडर में, इस जो आसपास सुनामी चल रहा है, जहाँ कोई रास्ता नहीं दिख रहा, वहाँ ब्लेसिंग्स आपको रास्ता दिखाती जाती है, आपके दिमाग में वो पीस, वो पेशेंस डालती है, जिससे आप उस रास्ता ढूंढ के उससे निकल सको। शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे अगर बवंडर से निकलने का है ना, वो थ्रू ब्लेसिंग्स है, थ्रू ब्लेसिंग्स। Thank you, Rajinder sir. Thank you very much for such an amazing sharing. आप लोगों ने जो दिया, Such amazing sharing. Thank you, sir. Thank you very much. Shrey sir. Ankit Bhaiya, so I'll keep it extremely short. For the past 6-7 months, life had been very terrible. Health खराब थी, wealth खराब थी, career का कुछ हो नहीं रहा था, relationships पूरे एकदम ही down थे. But जो आपने बोला ना कि एक critique दिमाग होता है और एक forward thinking दिमाग होता है. I made a friend out of my critique. कि क्यों नहीं होगा, अच्छा बता क्या प्रॉब्लम है, and I started working on that. By God's grace and because of gratitude and the things that we have been practicing, I switched my jobs, got a very handsome hike. I switched cities. I'm now in Bangalore from Pune. The people that I love are near to me. My health is at its prime. मेरी जो भी सर्जरीज और जो भी इश्यूज थे वो सारे खत्म हो गए, एंड आई एम मतलब एंड कल ही आई जस्ट मेरे को लग रहा था कि यार बैंगलोर के अंदर देयर इज अ हाउसिंग शॉर्टेज, कि घर कहाँ मिलेगा। विद इन अ डे आई सेड कि हाँ यार मिल गया है, एंड विद इन अ डे आई गॉट द प्रॉपर्टी दैट आई वांटेड, कि हाँ मतलब ये होनी चाहिए जगह बिल्कुल उसी हिसाब से। तो अब ना वो घबराहट ही चली है, अब वो रहता है हाँ जो होगा देखा जाएगा यार, हो जाएगा, तो टेंशन मतलब हो जाएगा। So thank you so much. It has been an amazing time. Super sir, super amazing. So कोई और लोग जो ऐसी ही अगर ट्रबल सम पीरियड से चल रहे हो तो वो शेयर कर लो, तो क्या पता उसमें कोई सोल्यूशन मिल जाए। और अगर कोई ट्रबल सम पीरियड से निकल के विक्ट्री है तो सेलिब्रेट कर लो सर की तरह, जैसे राजेंद्र सर और श्रेय सर ने सेलिब्रेट करा कि यार हमारे लाइफ में ट्रबल सम पीरियड आया और हमने इसमें विक्ट्री पाई, और एक वो सेलिब्रेट किया। ये जो शेयरिंग है वो सेलिब्रेशन का तरीका है कि यू नो वी आर रियली हैप्पी दैट यू नो द टाइम टफ टाइम विल कम। उस जब तक आप इंसान हो, ह्यूमन बीइंग हो, तब तक गुड टाइम्स एंड टफ टाइम्स आएंगे। हमको बस इसमें अटकना नहीं है, जैसे श्रेय सर ने कहा ना कि यार बस अच्छा हो जाएगा, कर दो, हो जाएगा, निकल जाएंगे। उसी तरीके से आप लोगों को रहना है कि यार ये टफ टाइम आएगा, आप निकल जाओगे, एवरीथिंग विल हैपन गुड, जस्ट कीप योर माइंड एंड गेट ओवर इट। यस हर्षिता दी। हर्षिता दी। यस सो भैया मेरे साथ भी अभी सेम चीज हुई जो इन्होंने बोला ना, बैंगलोर में हाउसिंग शॉर्टेज है। सो हमें भी लैंडलॉर्ड ने नोटिस दे दिया था एंड वी हैड टू वेकेट दिस हाउस, एंड 2-3 महीने से हम घर छोड़ ढूंढ रहे थे। वी डिडंट वांटेड टू शिफ्ट फ्रॉम दिस सोसाइटी। तो फाइनली हमें एक घर मिला, एंड इन बिटवीन 2 महीने के लिए हमारे पास घर नहीं था। तो वी रियलाइज कि अगर हमें कहीं मूव करना ही है तो चलो जयपुर चलते हैं, 1-2 महीने अगर सर्विस डिपार्टमेंट में रहना है तो जयपुर में ही रह लेंगे। एंड भैया मेरे जो 10th विश थी, जो मेरी अभी की जो लिस्ट बनी हुई उसमें 10th विश थी दैट आई वांट टू मूव बैक टू जयपुर। एंड हम सिर्फ 2 महीने के लिए जा रहे थे, एंड सडनली ये रियलाइज मेरा ऑफिस तो जयपुर में, हम वापस आएंगे ही क्यों बैंगलोर। नाउ वी आर शिफ्टिंग बैक टू जयपुर। I can't tell you how happy I am with this. You know, it was a very adverse situation कि यहाँ घर नहीं मिल रहा और उतने में एक विश पूरी हो गई। So it is amazing. So I'm now coming back, now looking for a house in Jaipur. 12th को I'm moving back to Jaipur. super. Great, बहुत ही बढ़िया। बाकी आप सब लोगों का कैसा चल रहा है हाउस लाइफ, हाउस दिवाली, हाउस क्या दिवाली पे कैसे सेलिब्रेट करा, क्या नया करा, कितनी और लिस्ट बनाई कि अब वापस से अपनी लिस्ट बनानी है। Who would like to share?
चलो कोई नहीं, आई विल कॉल रवि भैया। रवि भैया है क्या? Yes, happy morning everyone. Happy Happy morning, Diwali, happy Ravi. morning. सुन रहा था मैं आप सब लोगों की बातें, ऐसा लग रहा था राजेंद्र सर की बातें, श्रेय की बातें सुन के ऐसे लग रहा था कदम कदम पे नया इम्तिहान रखती है। सही है ना राजेंद्र सर? कदम कदम पे नया इम्तिहान रखती है जिंदगी, तू भी मेरा कितना ध्यान रखती है कि नहीं? ग्रेट, थैंक यू सो मच। क्या रहा, कैसी चल रही है दिवाली? हाउ इज एवरीवन? आई होप एवरीवन हैड अ वेरी वेरी गुड टाइम ड्यूरिंग दिवाली। मिलना मिलाना लोगों से, एक दूसरे के पास जाना, गिफ्टिंग, शेयरिंग, हाउ वाज इट? कैसे रहा? मतलब कोई तो आओ, कोई तो शेयर करो यार। ऐसे एनर्जी डल क्यों कर रहे हो? थोड़े दिन नहीं मिले तो इसका मतलब ये थोड़ी कि एनर्जी लो हो जाएगी। थोड़ा Best Diwali for me. हैप्पी दिवाली राजेंद्र सर। आई कैन सी दैट ग्लो ऑन योर फेस बैक अगेन। सर, बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लगा। कैसा रहा दिवाली? यूएस में कैसी रही दिवाली? तो यूएस में ऐसा व्हाइट हाउस में भी सेलिब्रेट हुई है। Actually, state of New York has declared beginning next year Diwali as a public holiday for schools also. Diwali is much becoming very, very known, and in our society, we call it a neighborhood. You know, I put it on Facebook. People come to look at it. Even they watch from home, they should see the decoration. We do fireworks, and everybody says, "Great." You know, people are. You know, our Indian diaspora is in such a powerful positions everywhere. We are the Indian Americans are one of the most affluent people in the United States. Diwali is सही now बात। well known and is celebrated everywhere. सुपर सर, सुपर। ताई जी क्या हाल है? हैप्पी दिवाली। एकदम उम्दा। हैप्पी दीपावली। कैसी रही आपकी दिवाली? ऑल डेज दिवाली होती है, 365 डेज। 365 डेज जश्न होता है। या ग्रेट ग्रेट। सो गाइस, आप सब लोग कैमरा क्यों बंद करके बैठे हो? क्या हो गया? मतलब इट्स द सेम ग्रैटिट्यूड फैमिली, सब कुछ वही है। क्यों सब लोग कैमरा बंद करके सुबह सुबह ऐसे बैठे हो? वो एनर्जी एक्सचेंज कैसे होंगी? ऑल द पीपल, स्पेशली ऑल दी एलुमनाइज। नए लोग तो फिर भी मैं समझू। हाँ विक्रम, क्या फर्क पड़ता है? नीना जी ने चालू कर लिया। गुड टू सी यू विक्रम। कैसी रही दिवाली? भैया बहुत बढ़िया रही। मिलना मिलाना हुआ लोगों से? बिल्कुल भैया, आई मीन जयपुर, बहुत मजा आया सबसे मिलने में। जयपुर में एक अलग ही मजा है दिवाली का। हाँ, ये तो जयपुर तो है ही, राजस्थानी ठाठ तो अलग ही है। ग्रेट 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 गाइस, ग्रेट, थैंक यू सो मच। सो आज का जो टॉपिक यही था कि लोनली लव। कुछ लोग कोई तो बताओ, मेरी आवाज आ रही है ना? यस। अभी ठीक है, अभी ठीक है, पीछे कट गई। एक सेकेंड, लेट मी जस्ट पुट माई सेल्फ ऑन अदर कनेक्शन। वन सेकेंड प्लीज। हाँ जी, आई थिंक आई एम डन नाउ। सुधा जी कैसे हो? एकदम ठीक, नमस्ते। हैप्पी दिवाली एंड हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीबॉडी। कांट हियर। पापा कैन यू हियर मी? या आई कैन हियर यू नाउ। कैसे हो आप? एकदम ठीक। हैप्पी न्यू ईयर एंड हैप्पी दिवाली टू एवरीबॉडी। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू अगेन।
अंकित भैया आप हो क्या यहाँ पे? यस सर, मैं यही हूँ, नहीं है। So I mean I cannot see people, so that's why my energy is low. आपको दिख रहे हैं क्या लोग? मेरे को आप दिख रहे हो। Okay, great. दिख तो रहे हैं, थोड़े ही दिख रहे हैं, ज्यादा नहीं दिख रहे। कैमरा बंद है ना बाकी सबके तो? अच्छा चलिए ग्रेट. अविनाश भी आ गए. गुड टू सी अविनाश, गुड टू सी नीना जी. I think this will get better from here now. Yeah, great. So all good, all good. एक बार मैसेज कर दीजिए. Anyone has having problem with Zoom? श्रेय आ गए क्या आप? मैं तो यही हूँ सर. नहीं हो, दिख रहा है आपको सब कुछ? आवाज आ रही है क्या मेरी क्लियरली? आ रही है, बीच में ब्रेक हो रही है, बट इट्स फाइन, हो जाएगा. फाइन. ओके चलो. थैंक यू Zoom. थैंक यू सो मच फॉर गेटिंग थिंग्स राइट. एनीवेज, सो आज का जो टॉपिक है लोनली लव. किस किस को ऐसा लग रहा है कि यार दिवाली में बहुत ज्यादा मिलना मिलाना हो गया यार, थक गए, मतलब थोड़ा सा टायर्ड हो गए, इतना ज्यादा सोशलाइजिंग हो गई, इतना ज्यादा परिवार, रिश्ते, दोस्त यार, घूमना करना, मिठाइयाँ बांटना, मीठा खाना बहुत ज्यादा हो गया यार, थोड़ा सा ब्रेक चाहिए. ऐसा किसी को फीलिंग आ रही है क्या? कोई ऐसी फीलिंग ईमानदारी से? एनीवन हैज अ फीलिंग लाइक दैट? नो वन? यस और नो? लिख तो दो. यस और नो? नो. सो मेनी नो. थोड़ा सा तो है, ठीक है. नो 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 नो. ग्रेट ग्रेट. चलिए, हो सकता है कहीं ना कहीं हमारी जो प्रोग्रामिंग है ना वो बड़ी प्यार वाली प्रोग्रामिंग है कि यार प्यार के भूखे हैं हम लोग, राइट? हो सकता है. एनीवेज, सो आज बेसिकली आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है, एक आइडिया है, एक स्टडी जो मैंने पढ़ा था कहीं. आई थॉट आई विल शेयर दैट विद यू कि रिदम क्या होती है प्यार में और लोनलीनेस में, अकेलेपन में, अलोननेस में. क्या रिदम होती है, उसको कैसे बैलेंस करना चाहिए. ये बेसिकली ओशो की टीचिंग है. सो आई थॉट I'll explain that and share with everyone because अभी दिवाली खत्म हुई है, सब लोग प्यार से भरे बैठे हैं, रिश्तों से भरे बैठे हैं, एवरीथिंग इज सुपरली गोइंग और बड़ा मजा आया होगा. बट ओशो की साइंस ये बोलती है कि आपके जो जीवन है, आप एक ग्लास की तरह हो. आप एक ग्लास की तरह हो. आपका जो ग्लास है वो भरता है प्यार से जब आप अकेले होते हो. आपकी लाइफ का जो ग्लास है वो बढ़ता है प्यार से जब आप अकेले होते हो. अलोननेस मेक्स यू ओवरफुल. और जब आप एनीवन वांट्स टू से समथिंग? I was asking, how is it possible? अभी आते हैं, शेयर करते हैं, अभी करते हैं. तो होता क्या है कि जैसे जैसे आप लोगों से मिलते हो, आप लोगों के पास जाते हो, आप अपना प्यार देते हो, आप अपनी एनर्जी शेयर करते हो, तो आपका जो ग्लास है वो खाली होने लग जाता है. और फिर एक जरूरत आती है कि उस ग्लास को वापस भरा जाए. तो जब जब आप प्यार से खाली होते हो, आपका जो अलोननेस है, आपका जो अकेलापन है, वो आपको नरिश करता है, वो आपको वापस से ठीक करता है, वो आपको वापस से एकीकृत करता है. समझ रहे हो आप लोग? अब इसको मैं और डेप्थ में जाके थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ. इनफैक्ट आप रिलेशनशिप तभी इंजॉय करते हो जब आप आप अकेलापन तभी इंजॉय करते हो जब आप रिलेशनशिप्स इंजॉय करते हो. और रिलेशनशिप्स ही
ऐसी एक जरूरत डेवलप करते हैं आप में जो बोलती है कि आपको अकेले रहने की भी जरूरत है। समझ रहे हो आप? रिलेशनशिप, when you are in a relationship, when you are surrounded with people and when you spend a lot of time with people around, that creates a need of aloneness. अगर आप किसी के साथ बहुत गहरे रिश्ते में हो, आप लकी हो कि आपके रिश्ते बहुत अच्छे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर आती है कि एक मेरे को मेरे मी टाइम के लिए, मेरे अकेलेपन के लिए समय चाहिए। होता क्या है कि स्पेशली ऐसा त्योहार होता है दिवाली का, जब हम बहुत ज्यादा लविंग होते हैं, बहुत ज्यादा सोशल होते हैं, सो वी स्टार्ट फीलिंग स्पेंट, वी स्टार्ट फीलिंग एग्जॉस्टेड। आई एम नॉट सेइंग कि गलत सेंस में, यू आर जॉयसली टायर्ड, यू आर हैप्पीली टायर्ड, बट हर एक्साइटमेंट जो आपकी लाइफ में होता है ना, वो थोड़ा सा एग्जॉस्टिंग होता है। एंड इसको रिलेट करना इंपॉर्टेंट है कि कैसे आप इस एक्साइटमेंट को, कैसे आप थोड़ा सा अलोननेस में जाओ और दोनों में एक बैलेंस बनाने की कोशिश करो। हो सकता है कि आप कभी कभी बहुत ज्यादा ओवरफ्लो कर जाते हो और आपका ग्लास खाली हो जाता है, और फिर एकदम से आप, नहीं बस अब हो गया यार, अब इससे ज्यादा मेरे से नहीं हो सकता, अब मेरे को ब्रेक चाहिए, मेरे को मेरा मी टाइम चाहिए। फिर आप जाते हो, मेडिटेट करते हो, आप अपने ग्रैटिट्यूड लिखते हो, आप अपनी डेली रूटीन को फॉलो करते हो, और फिर अपने आप को आप भरना चालू करते हो। यू बिकम सेंटर्ड, यू स्टार्ट फिलिंग योरसेल्फ विद दैट एनर्जी, विद दैट प्रेजेंस, विद दैट लव, और फिर ये एनर्जी वापस से नेचुरली फ्लो होती है कि आप वापस से जाके इस एनर्जी को दूसरों के साथ शेयर कर सको, इस प्यार को दूसरों पे निछावर कर सको, और तब जाके लाइफ अच्छी हार्मनी में आती है, लाइफ एक गाना बन जाती है, लाइफ एक डांस बन जाती है, लाइफ सेलिब्रेशन बन जाती है। तो जो साइंस है वो ये बोलती है कि यूजुअली ऐसा होता है कि जब हम लोग घुस जाते हैं बहुत ज्यादा रिश्तों में, बहुत प्यार में, और हम चलते ही चले जाते हैं और वो नीड बढ़ती चली जाती है, बट उसके रिपरकशंस भी होते हैं। सो आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे एक अच्छा ताल बिठाएं प्यार में, रिश्तों में, और थोड़ा सा अलोननेस में। हाउ कैन यू एक्चुअली मेक अ बैलेंस बिटवीन दी बोथ। प्रॉब्लम क्या होती है, द डेंजर तब आता है जब आप लव और अलोननेस, इन दोनों में से लोगों को लगता है कि हमारे को एक ही चीज चुननी है, वी जस्ट हैव टू सेलेक्ट वन, वी जस्ट हैव टू सेलेक्ट वन। नहीं, ऐसा नहीं होता। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही क्रिएट करता है। ये दोनों हमारे दो हाफ हैं, थोड़ा सा मी टाइम और रिश्ते और प्यार हमारे दो हाफ हैं, और आधा मतलब मिजरेबल। अगर आपको पूरा करना है तो पूरा होने के बाद ही आप हेल्दी, हैप्पी हो सकते हो। जब आप आधे रहोगे तब आप तोड़फोड़ी करते रहोगे, क्योंकि आप अपने दूसरे हाफ को कंट्रोल नहीं कर सकते। आपको पूरा होना, योर लाइफ हैज टू बी कंप्लीट, कंप्लीट। और दूसरा पार्ट भी आपका जरूरी है। सो आइदर ऐसा नहीं हो सकता है कि यार मैं तो प्यार चुन रहा हूँ, अकेलापन नहीं चुनूंगा, या मैं अकेलापन चुन रहा हूँ, प्यार नहीं चुनूंगा। ये दोनों चीजें ऐसे नहीं होती, आपको इसमें बैलेंस बनाना पड़ता है। कुछ लोग रिश्तों को चुन लेते हैं, इतना चुन लेते हैं कि अपने लिए समय निकालना भूल जाते हैं, अपने लिए स्पेस निकालना भूल जाते हैं, और धीरे धीरे वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं, वो एम्प्टी हो जाते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि रिश्ते गलत हैं, मैं ऐसा तो बोल ही नहीं सकता हूं, आप लोगों को मालूम है कि रिश्ते गलत हैं, बट अगर आप अपने आप से कॉन्टैक्ट छोड़ दोगे, आप एग्जॉस्ट हो जाओगे, तो आप एक ही पेंडुलम का एक ही साइड देखोगे, आप बैलेंस नहीं बना पाओगे। तो बेसिकली मैं पढ़ रहा था मॉन्क्स के बारे में। मॉन्क्स वो लोग होते हैं जो सब कुछ त्याग के और सब कुछ छोड़ छाड़ के और एक ही लाइफ को पकड़ लेते हैं कि मतलब नहीं, हमारे को अकेले रहना है। तो वो अकेले रह रह के उनका जो ग्लास है वो इस कदर बढ़ जाता है, इस कदर बढ़ जाता है कि वो ओवरफुल हो जाते हैं। उनको समझ में नहीं आता कि हम अपनी एनर्जीज, हम अपना प्यार कैसे निछावर करें।
किधर पोर करें, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ को रिस्ट्रिक्ट कर लिया कि हम प्यार नहीं करेंगे, हम रिश्तों में नहीं जाएंगे, हम लोगों के साथ जाके उठेंगे बैठेंगे नहीं। जब आप ऐसा करने लग जाते हो तो आपकी एनर्जीज जो हैं वो खट्टी होने लग जाती हैं। योर एनर्जीज स्टार्ट बिकमिंग बिटर, योर एनर्जीज स्टार्ट बिकमिंग बिटर। सो बेसिकली मेरा एक्सपीरियंस रहा है दोनों में, और सारे एक्सपीरियंस के बाद आपके साथ ये बोला हूँ, एक टाइम था जब मैं बहुत सारा रिश्तों में, बहुत सोशल, बहुत हर एक चीज को फोमो में जीता था कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा तो मैं कुछ मिस कर दूंगा, मैं इस गैदरिंग में नहीं जाऊंगा, मैं इनसे नहीं मिलूंगा तो मिस कर दूंगा, मैं उनसे नहीं मिलूंगा तो मिस कर दूंगा। जयपुर में हर दूसरा तीसरा आदमी मेरा जानकार था, एंड आई बिकेम एग्जॉस्टेड इन लाइफ। एंड देन I also tried to isolate myself from the world. There was a time जहाँ 8-9 महीने अपने आप को बिल्कुल आइसोलेट कर लिया था। ठीक है, आई वॉज फीलिंग गुड, एनर्जीज बढ़ती जा रही थी, बट वो एनर्जीज खराब होती जा रही थी। सो इसमें बेसिकली क्या है, यू हैव टू फाइंड द राइट बैलेंस, यू हैव टू फाइंड द राइट बैलेंस बिटवीन लव एंड अलोननेस। द ब्यूटी ऑफ दिस बैलेंस इज कि आप जब प्यार में होते हैं ना, वो पीक आता है और फिर एक रिदम होती है, फिर एक साइलेंस होती है, एक छोटा सा ब्रेक आता है, फिर वापस वो प्यार जाता है। समझ रहे हो आप लोग मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? म्यूजिक, मतलब आप कोई भी लव सॉन्ग सुनोगे ना तो बड़ा लव सॉन्ग ऐसे चालू होगा, ऐसे प्यार भरे शब्द चालू होंगे, फिर छोटा सा ब्रेक आएगा, फिर प्यार वाली चीजें आएंगी, फिर छोटा सा ब्रेक आएगा। चलो एक कोई लव सॉन्ग बताओ, एक लव सॉन्ग चलाते हैं, देखते हैं किस ब्रेक की बात कर रहा हूं मैं। अच्छा चलो एक लव सॉन्ग चलाता हूँ मैं आप सब लोगों के लिए। ये अंकित का फेवरेट सॉन्ग चलाता हूँ, चलो ठीक है। मैं वीडियो नहीं चला रहा, आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो यू कि क्या बोलना चाह रहा हूँ। एक साइलेंस आया ना इस प्यार वाली लाइन के बाद, वापस लेट्स प्ले अगेन। Silence I'm talking about. This is the silence I'm talking about, that we need to have this silence to refill ourselves. We have to have this silence to refill ourselves. और उसका ब्यूटी क्या होती है, आप सब लोगों को सोचना पड़ेगा कि अगर आपकी वाइफ या आपका हस्बैंड, आपको अलाइन होना पड़ेगा उस रिदम में। कोई भी इंसान आपको 24 घंटे प्यार नहीं कर सकता। यू नीड रेस्ट पीरियड, यू नीड रेस्ट पीरियड। आप ये उम्मीद, क्या होता है दिवाली के बाद उम्मीदें इतनी बढ़ जाती हैं, इतना अच्छा है, सब कुछ इतना प्यारा है, पीपल आर सो पॉजिटिव, पीपल आर सो नाइस, एंड देन हमारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो बहुत ज्यादा हाई होने लग जाती हैं सब लोगों से। सो आपको आज अपने आप को, अपने स्पाउस को अलर्ट कराना चाहिए कि कोई भी 24 घंटे प्यार नहीं कर सकता, रेस्ट पीरियड्स चाहिए होते हैं, और कोई भी जोर जबरदस्ती प्यार नहीं कर सकता। लव 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 इज अ स्पॉन्टेनियस फेनोमेनन। जब भी प्यार को होना होता है वो अपने आप हो जाता है, और जब नहीं होना होता तब वो नहीं होता। आप उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। अगर आप जबरदस्ती किसी को बोलोगे प्यार करने को या खुद कोशिश करोगे तो वो एक एक्टिंग ही होती है। दैट इज नॉट ट्रू लव, वो दैट इज नॉट ट्रू लव। सो लेट्स बी अवेयर ऑफ दिस रिदम। जो ये ताल मैं आपको बता रहा हूं ना, इस ताल को, मतलब प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस। जब जब आप अकेले होना चाहते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप दुनिया को रिजेक्ट कर रहे हो। जब जब आप अपना टाइम चाहते हो, दैट डजंट मीन्स यू आर रिजेक्टिंग द वर्ल्ड। इसका मतलब ये होता है कि आप थोड़े से स्पेंट हो चुके हो, यू नीड टू रीफिल योरसेल्फ अगेन। अगर आप अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालोगे तो यू आर सेंटरिंग योरसेल्फ, यू आर ट्राइंग टू रीफिल योरसेल्फ। अगर
आपका पार्टनर आज आपको रिजेक्ट करता है बिकॉज वो बहुत सोशलाइजिंग कर चुका है या आपके साथ बात नहीं करना चाहता, वो थोड़ा चुप रहना चाहता है, मौन रखना चाहता है, तो उससे कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ आपकी ईगो हर्ट होती है। होएगा ऐसा कुछ लोगों के साथ कि लोग जब स्पेंड हो जाते हैं वो थोड़े से साइलेंट हो जाते हैं। तो जब जब ऐसा होता है तब आपकी सिर्फ ईगो हर्ट होती है, और ईगो कोई समझदार चीज तो है नहीं। अहंकार इज लाइक इडियोटिक, ईगो इज इडियोटिक, इंटेलिजेंस नोज नो ईगो। तो वो ईगो को सेटिस्फाई करने की आप लोग जरूरत मत कीजिएगा। अगर आपकी वाइफ, श्रेय, अविनाश, अगर आज आपकी वाइफ आपके साथ नहीं बैठना चाहती, कहीं और जाना चाहती है, तो इसका मतलब वो नहीं है कि वो आपको रिजेक्ट कर रही है। समझ रहे हो ना? वो शी हैज लव्ड यू सो मच लास्ट फ्यू डेज और वॉट एवर, शी वॉन्ट्स टू बी अलोन, शी वॉन्ट्स टू हैव हर टाइम, वो मी टाइम चाहती है। और अगर आप सच्ची में उनसे प्यार करते हो तो आप उनको अकेला छोड़ दोगे। आप टॉर्चर नहीं करोगे कि नहीं तू ऐसे क्यों कर रही है, तेरे को मेरे साथ बैठना नहीं है, तू मेरे को रिजेक्ट कैसे कर सकती है। आप उनको फोर्स नहीं करोगे प्यार करने के लिए। यू विल नॉट फोर्स हर टू लव यू बैक। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग एक दूसरे को स्पेस दें, हम लोग एक दूसरे को अच्छी स्पेस दें। पेंडुलम वापस आ जाएगा, एक बैलेंस बनाना जरूरी है। So it is very important that we all fill ourselves with love energies and then pour it on the world again. So thank you so much everyone for filling up yourself with love energies. Thank you for pouring them to the world. Get back to your daily routine. जो आप करते आ रहे थे, your meditations, your gratitudes, your exercises, all the other things what you were practicing, please do that, कि जैसे आप अपने आप को वापस रिफिल कर सको, वापस आप एक कनेक्ट बना सको सबके साथ, वापस आपकी एनर्जीज के लेवल पीक पे आ सके। सो दिस वाज जस्ट, आई थॉट, अ परफेक्ट टॉपिक आफ्टर दिवाली, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन लेके लोग, हाँ लाइफ ऐसी चलती है। सो नो, प्लीज हैव अ मी टाइम, स्टार्ट स्पेंडिंग, start filling up yourself with good energies and start sharing it with the world again, and don't let your energies become bitter. Thank you, thank you, thank you. This was the only topic today. Any questions about it? Any doubts about it? किसी के कोई सवाल? अगर किसी की कोई सवाल नहीं है तो पुष्पा जी की एक बहुत अच्छी शेयरिंग थी, which I really want her to come out and speak. Hello, everybody. Am I audible? Yes. So I was sharing with Ravi only, like, in fact, gratitude to हम शुरू से ही थे. This is a kind of upbringing I have always had. हमेशा हम इसी तरह की जिंदगी जी है बचपन से, ग्रैटिट्यूड में रहो, और ऐसे ही चलता रहा। लेकिन जब से हमने ग्रैटिट्यूड क्लब ज्वाइन किया, वो आई थिंक वो जब आपने 3rd सेशन शुरू किया था, और तब मतलब हम ग्रैटिट्यूड में रहते थे, लिखते थे, मैनिफेस्टेशन नहीं करते थे, ओनली राइटिंग। बट समझ में नहीं आया हम लिख क्यों रहे हैं, क्योंकि हम तो ऑलरेडी इतना ग्रैटिट्यूड में हैं। वो चलता रहा एंड हम बहुत सारे सेशंस भी अटेंड करते थे। और अभी इनफैक्ट 6 महीने में समथिंग हैपन इन माय लाइफ। इनफैक्ट माय फ्रेंड, माय सिस्टर इन लॉ, शी इज माय हस्बैंड्स मासी's daughter. She was my dear friend, my guide, my younger sister, more or less my age. She was 5 years younger to me. She was very healthy, lot of gratitude on the spiritual path. She was perfect, you know. She went on vacation and something happened to her. You know, it was only gas problem, and she was restless. She went to her room and she died. She had a heart attack. So, ये वाला incident, and you know, it really shook me. So, because Ankit वो शुरू में share कर रहे थे, I was not near the device, and थोड़ा बहुत हमने सुना। और जो बोलते हैं ना कि जो बहुत प्रॉब्लम का टाइम आता है, डिफिकल्टी का टाइम आता है, either it breaks you down or you are a transformed person. So March में she died this year only. So 3 months was a period of I was like in darkness. Like I was very happy person, very joyful person,
but something changed in my life. तो कभी दुनिया की कोई किताबें, scriptures के पास कोई भी practice ने change नहीं किया. And I was in depression, like I was again जैसे आप बोल रहे me time. So I was in my own shell, you know. I didn't even know what's happening, but it really gave me the meaningful life. Like जैसे इतनी सारी books होती हैं, Power of Now, Live in Moment, all जितनी books वो हमने सुनी है अपने लाइफ टाइम में आसपास से, तो उसने हमें एक मीनिंग दिया कि हम इतनी बड़ी बड़ी बातें करें, बट दिस इज द पावर ऑफ नाउ. ऐसे लाइफ का कोई भरोसा नहीं है. हम तो कितना कितना प्लान करते हैं लाइफ में, ऐसा करेंगे एंड वी आर वरीड अबाउट आवर फ्यूचर. बट उनकी डेथ में तो शी वाज लाइक very very close to me. She was the only person I liked. I was very close to her, and वो पता नहीं लगता हम कितने connected हैं emotionally. तो वो इंसान चला जाता है तब पता लगता है. So I was so down. I went into depression for 3 months. Like I stopped every level, physical, mental, emotional, spiritual. I was totally zero. Like I was totally bedridden. I could not even go out. I could not speak anything. But it was a very very down period. But all thanks to the, I think, उस टाइम पे बहुत सारी चीजें समझ में आई, ग्रेटिट्यूड की बहुत सारी. I was all alone, me time, like just now you were saying, me time. So me time भी था, emotionally down भी थे, but a lot of things were happening. But 3-4 months, and because I was very spiritual, so I was connected to the universe. A lot of gratitude. वो हमारा, it was not something I learned in Gratitude Club, but like I was sharing with you, Ravi, it was reinforcing. Gratitude तो पहले ही होता है, जिससे कि आप फैमिली में रहते हो, आपके वैल्यूज होते हैं, but reinforcing, so that was the time. I think बहुत सारी चीजें हमें समझ में आए, like अंकित का वो strict face, लिखो, so you know, like lot of things get into your system. Like Ankit, very strict personality, you are very very joyful, so पता नहीं लगता कौन सी चीजें हमारे पेन ड्राइव में गई. पेन ड्राइव इज ना सिस्टम, इट्स ओनली लेटर. So 3-4 महीने, and I was on pills also, like I consulted a doctor also, but that period was a transforming period for me. I came out of it, and I was a transformed person. Like, you know, I think July mein, it was a shift to what I was. I didn't even know this is me. So I'm a totally transformed person. And for that period, I think because हम जब इतना कुछ सीखते हैं, देखते हैं, सेशंस करते हैं, हमें लगता है कि नहीं वर्क कर रहा है. It works. It's an open pen drive. We all are huge pen drive. It goes subconsciously. अगर नेटवर्क की तरह है, पता नहीं कौन सी चीज कब हिट करती है. So I was always lot of gratitude to you, Ravi. I was revamping the joyful face. It was there. अंकित का strict face. वो कभी रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं. Very strict to the point. So many things, but people, they contributed in my life. So जब ट्रांसफॉर्म हुए, I was very transformed. I started doing things which I never did. Like you, हम टेक्निकल, I'm not a tech savvy, but YouTube पे हमने अपने वीडियोस बनाना शुरू कर दिया. I started singing, I started dancing, I started doing lot of things. I started doing lot of things which I never did before. Like investment, for example, I got into investment. I started learning like legal knowledge नहीं थी हमारे जो, I'm a counselor basically emotionally, but उसमें legal knowledge भी चाहिए. I started taking training, legal training. So what I was, मतलब अब हम 61 के होने वाले हैं, which I never did all these things because there were a lot of no's. I understood. ये मत करो, भाई ने बोला मत करो, पापा ने बोला no. All the obstacles during the journey also, social बोलते हैं मत करो, लोग क्या बोलेंगे, all these things. So for my talking in front of all of you is itself a breakthrough because I'm not comfortable talking to everybody in a group because हमारा जो profession भी रहा है, it's always one-on-one. But रवि से बात हो रही थी तो बोलते try. I said okay, I will try. Okay, हमने कहा कि हम comfortable नहीं हैं. But all thanks to you again. I think it's a victory for me talking to all of you because जब हम family लिखते हैं ना, I said interest to family. How can I talk? So many people are there on the session. But then I think the vocabulary, I think, is very very powerful. When you write gratitude club, इसकी जगह gratitude family. I said we all are family, and we don't hesitate talking in front of family. So this is the change I saw, and again, gratitude is very बहुत ऐसा vocabulary है जो पूरा express नहीं करती है. So gratitude to again to Ravi, to Ankit, to everybody. You know, all these teachings and sessions really helped me to the person I was. So कभी नहीं बने, and I feel very very young now. I think I feel more younger. I feel like 18 years old. I can't
सुपर मैम, सुपर सुपर सुपर। आपकी शेयरिंग के लिए म्यूट कर रखा था। इट वाज लिट अमेजिंग अमेजिंग। और आप क्या धारा प्रवाह में बोले, हमको तो ऐसा लगा आप प्रोफेशनल पब्लिक स्पीकर हो। But इट फेल्ट रियली प्रोफेशनल, लाइक एकदम सुपर स्मूथ फ्लो के साथ आप बोले हो। इट इज रियली 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 अमेजिंग। व्हाट अ शेयरिंग मैम, व्हाट अ शेयरिंग, ग्रेट, सुपर। पुष्पा जी, एक रिक्वेस्ट करूं आपसे, एक रिक्वेस्ट करूं आपसे, बिल्कुल। आप अपनी एज को रिवर्स कर दो। सॉरी, क्या एज को रिवर्स हो गई हमारी? आई एम 18। 16 आज के बाद 61, आई एम 16, आई एम स्वीट 16। या और हमें इतने कि हम बोलते हैं, हम लिखते हैं, आई नेवर राइट, आई वाज शेयरिंग विद यू रवि, आई नेवर राइट। हम एवरी मोमेंट, अंकित, Ravi, I'm in gratitude. Like if I'm holding this, I'm gratitude, my muscles are working. If I'm talking, I'm so grateful I can talk. There are so many people who can't speak. It is not writing 5, 10 gratitude, but every moment, this I was sharing with Ravi only. Every moment I'm in gratitude, and you will not believe it. The manifestation is every minute only. Newton's third law, every action has got equal and opposite reaction. So I'm not writing, I get bored writing gratitude, but every moment I'm in gratitude. And whatever I speak, it's just there. A daily basis, I live my life. Today, right now, I'm alive. Thank you so much. But my friend died 3 days, 3 hours before she was clicking selfie. And after 3 hours, she was not there. So that gave me perspective to live life. बोलते हैं ना, जीने का भी रास्ता उसने दिखाया था, और जब उनकी लाइफ नहीं थी, उसने भी बहुत अच्छा रास्ता दिखाया। Life and death teaches you how to live properly and right in the moment. Today I'm here, maybe after 1 year I'm not, after 1 hour I'm not there. So might as well enjoy now. तो PhD करने तो नहीं आया ना। सुपर सुपर, वेरी नाइस। एक बात आप भूल गई, बिकॉज शी इज सो मच इनटू ग्रैटिट्यूड, so much into gratitude, and she really wanted to do something. Can you guys hear me? Yeah, but your voice is not very क्यों आज ऐसा क्यों हो रहा है? So basically, she's so much into gratitude, she forgot to say she started interviewing people who would never think of being interviewed. So she goes to a sweeper, and when she sees someone working very hard, she would interview him and put her video on YouTube. So she's getting into that habit that she's trying to contribute a little bit to the society. जो लोग काम करने वाले हैं, जिनको कभी importance नहीं मिलती है, she has started doing it, and she started enjoying that passion of hers. Am I right, Pushpa ji? Yes, so she shared a couple of videos with me, and they were really impressive. And thank you so much. Thank you so much for being inspiration for so many people. Thank you. Thank you for encouraging me, Ravi. Thank So you. we call you hunter, but I think it is English का जो vocabulary है बहुत, it doesn't express the kind of emotions, the kind of respect we have for both of you. Thank you so much. Thank you, ji. Thank you, thank you. Yes, Shweta. Good morning, Ravi sir. Good morning, Ankit sir. Happy Diwali, Happy New Year. Same to you, ji. Same to you. मैं अभी एग्जैक्टली इसी फेज से गुजर रही हूँ, जिस फेज के बारे में आज आप बात कर रहे थे, कि हम लोग इतना लोगों से कनेक्ट हो जाते हैं कि खुद से ही डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। लाइफ कोचिंग के प्रोफेशन में आने के बाद एक पीरियड ऐसा आया जब बहुत एजुकेशन चल रही थी, खुद से बहुत ज्यादा कनेक्टेड थे, लाइफ जीने में बहुत मजा आ रहा था। अब एक ऐसा फेज आ गया है कि बाहर वर्ल्ड को जाके सर्व करते करते खुद से डिस्कनेक्ट हो गए हैं, और वो एक वैक्यूम फील हो रहा है। मैं अभी भी उस इमोशन को कंप्लीटली समझ नहीं पा रही हूँ। मैं ग्रैटिट्यूड्स भी रेगुलर लिख रही हूँ, बट माय ग्रैटिट्यूड्स आर विदाउट एनी फीलिंग। लाइक मैं लिख रही हूँ रेगुलरली इनटू द डेप्थ, but I don't feel them. I don't have that connection of feeling with my gratitudes, and my vibrations are not up to the point where I feel they were. And still मतलब वो जैसे कैसे कहते हैं कि still I'm searching myself. तो वो जो एक डिस्कनेक्ट है ना, वो इतना लंबा है कि अब मुझे वो समझ नहीं आ रहा हाउ टू गेट बैक टू माई सेल्फ, लाइक यू नो हाउ टू गेट इन टच विद माई सेल्फ, हाउ टू गेट इन टच विद दैट हैप्पी जोन। तो जब आप लोगों ने सवाल पूछा था इसमें इंस्टाग्राम में कि कब से आप चाहते हैं कि हम नया बैच शुरू करें, एंड यू पीपल डायरेक्टली पुट जैन, मैंने बोला जैन बहुत दूर है, स्टार्टेड फ्रॉम नवंबर। दिवाली गिफ्ट हर बार आप देते हैं, इस बार भी दे दीजिए।
but somehow you people planned Jan, तो मैंने कहा ठीक है, but आज के सेशन के लिए this was completely for me. So I have this question from you. How should I connect back to myself? How should I get back into that energy जो मेरे अंदर थी पहले? Shweta, first you'll have to clear your concept in your mind. You are chasing that happy zone. You know, you cannot chase happiness. I've been telling you guys all the thing. You're trying to chase that. आप उसके पीछे कि यार वो मिल जाए, वापस वो मिल जाए, वो श्वेता मिल जाए, उस श्वेता से मैं कनेक्ट कर जाऊं, वो श्वेता मेरे को वापस मिल जाए, जो वो फीलिंग्स थी पहले ग्रेटिट्यूड वाली वापस आ जाए, मैं है ना, वो ये चीज कभी नहीं होती है. You cannot do this. This will never happen. You have to start practicing हैप्पीनेस. तो आप ग्रैटिट्यूड से बाहर निकल, धीरे धीरे आप वापस आओगे. यू विल स्टार्ट गेटिंग दोस फीलिंग्स व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग. स्टार्ट प्रैक्टिसिंग रैंडम ग्रैटिट्यूड. डोंट डू इट ऑन अ डेली बेसिस at that particular time. Whenever you feel that yes, something good has happened, pick up your diary and start writing. तो वो डेली शेड्यूल से थोड़ा निकल के थोड़ा सा आप चेंज करना चालू करो. स्टार्ट गेटिंग इनटू एक्सरसाइजिंग, स्टार्ट मेडिटेटिंग, स्टार्ट, you already have a rich social life. Start those strategies which I had shared with you about happiness. Start practicing those. Happiness can only be practiced. Happiness cannot be chased. Okay. Somewhere your me time, your meditation time is missing. I don't know whether you're meditating or not. I am meditating but not able to connect with myself the way I used to. हाँ, तो वो वही है ना कि मैंने मेडिटेशन का बताया कि हाँ भीड़ बहुत चल रही है, ट्रैफिक बहुत हो रहा है, दिमाग में थॉट्स बहुत चल रहे हैं, कुछ कनेक्ट नहीं हो पा रहा है. आ जाएगा धीरे धीरे. बट डोंट यू नो नरिश योरसेल्फ विद सेल्फ कंपैशन. डोंट बी हार्ड ऑन योरसेल्फ. इट्स ओके. दिस इज लाइफ. जिंदगी इम्तिहान लेती है. पर रवि जी, ये जो आप कह रहे हैं ना, ये मेरे साथ थोड़ा ज्यादा लंबे टाइम से हो रहा है. इट्स नॉट जस्ट दिवाली हैज ब्रॉट दिस फेज इन मी. आई कैन से दिस इज फ्रॉम लास्ट 3 months द फेज इज गोइंग ऑन इन मी. आई हैव स्टार्टेड डिपेंडिंग इमोशनली ऑन माय रिलेशनशिप्स के, लाइक यू नो द वे वी यूज्ड टू बी, कि अगर इफ दिस रिलेशनशिप इज बीइंग गुड विद मी देन ओनली माय हैप्पीनेस इज कनेक्टेड टू दोज रिलेशनशिप्स. सो आई फील कि व्हाई इज दिस फेज कम इन माय लाइफ. लाइक लास्ट 3 months से ये चीजें चल रही है मेरे साथ. उम्मीदें बढ़ती जा रही हैं. हाँ, कह सकते हैं बढ़ती जा रही है. एक्सपेक्टेशन इज मदर ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स. जब मालूम है तुम आप लोगों को सब सारी चीजें अच्छी तरीके से जानते हो, उसके बाद भी सिर्फ उम्मीदें रख के बैठेंगे तो फिर उसका तो क्या कर सकते हैं. यू बिकमिंग विक्टिम ऑफ योर ओन थॉट्स. So you need to have a desperate need to stay unconscious so that you are unaware of your sufferings. I'm trying to tell you. थोड़ा दीदी ब्रेक ले लो लाइफ में. थोड़ा सा स्टे टेक अ, जब ऐसा कुछ फेज मेरे साथ भी होता है तो आई जस्ट गो ऑन ब्रेक फॉर 2-3 days, जस्ट गोइंग आउट, हैविंग फन. I am no compulsion to serve anybody. It is serving me first. If I am really on that level of vibration, then I am able to serve on that point. So take a break for yourself, where you do things which you really enjoy. And happiness cannot be found outside. Happiness is found inside. So ये ठीक है, ज्ञान है बोलने के लिए, but it comes in the practice when these kind of moments come. जब लाइफ में ये फेज आता है, जब लाइफ में ये टफ फेज आता है, व्हेन यू हैव लिटिल बिट एक्सपेक्टेशन फ्रॉम आउटसाइड, यू नीड टू फाइंड दैट एक्सपेक्टेशन फ्रॉम इनसाइड, नॉट फ्रॉम आउटसाइड. सो इस समय इसको प्रैक्टिस करो कि जस्ट हैव फन इनसाइड. जस्ट बी योरसेल्फ एंड हैव फन व्हाटएवर you have. Just go with the wave. And this kind of phase also teaches a lot. मतलब ये आप है ना, ये है ना गेम ऑफ, कहीं ना कहीं हम गेम ऑफ डेस्परेशन खेलने लग जाते हैं इसके अंदर. कहीं ना कहीं वी गेट डेस्परेट, एंड द मोर डेस्परेट यू आर, द फार्दर थिंग्स गोज अवे. वी नीड टू बी डिटरमाइंड. एक होता है ड्रिवन और एक होता है डेस्परेट. अच्छा, दोनों बाहर से एक जैसे लगते हैं. जो डेस्परेट होते हैं और जो ड्रिवन होते हैं वो दोनों बाहर से एक जैसे होते हैं, अंदर से दोनों का मीनिंग बिल्कुल अलग होता है. आप बताओ क्या अलग होता है? एक तो हो गया डेस्परेट, एक हो गया ड्रिवन. क्या फर्क हुआ दोनों में? डेस्परेट में होता है हम आप सिर्फ भागते रहते हो उस चीज के पीछे. ड्रिवन में होता है कि आपको सर्टेनिटी होती है कि दिस इज योर पाथ, यू विल बी देयर. यस.
तो वो चीज़ आपको अपना डेस्परेशन को छोड़ के ड्रिवन होना है। बाहर से दोनों दिखेंगे एक जैसे, बट अंदर से जो दोनों की फीलिंग है ना वो बिल्कुल अलग है। डेस्परेट में आना, हाय ये वो कब क्या होगा, ड्रिवन में आपको मालूम है यार ये होगा। आई एम सर्टेन देयर विल बी सम हिकअप्स बट आई विल जंप आउट ऑफ दैट हिकअप्स, और फिर आप चलते रहते हो। Okay. ये चीज़ है। और मैं तो इसमें मेरा है ना एक बड़ा अच्छा तरीका है, मैंने एक ग्लास फुल करने का एक मेरा एक तरीका है। मैं है ना मतलब यूनिवर्स से शेयरिंग्स मांग लेता हूँ, यूनिवर्स से अमेजिंग शेयरिंग मांगता हूँ कि यार एक दो दिन के अंदर है ना कोई अच्छी अमेजिंग शेयरिंग आती है। और एक्चुअल में ना कोई फ़ोन करके या मैसेज करके दे देता है कि अंकित भैया ये हो गया, दिस हैपेंड दिस, कोई आके रैंडम मैसेज लिख देता है कि आई रियली लव यू फॉर दैट। तो वो है ना वो वापस से जो एनर्जी अगर मान लो कहीं नीचे भी जा रही होती है ना, वापस करके खट करके ऊपर हो जाती है। तो these kind of things will help you a lot on that point. Okay. And again, if you're helping somebody, don't have a account, a ledger, डेबिट क्रेडिट का, कि मैंने तेरी हेल्प करी है तो तू भी मेरी हेल्प करेगा। डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न। See, monetary is something different. I'm not talking about monetary, but anything else. Don't have any attachment. Detach yourself from there. मतलब क्या होता है जब हम कई लोगों को हम बोलते हैं यार आप प्रॉब्लम सुनना बंद करो, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग डिटैच नहीं हो पाते हैं उन लोगों से। हम कहीं ना कहीं अटैचमेंट रख लेते हैं, एंड दैट इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, फॉर योर सेल्फ, बिकॉज कहीं ना कहीं उनकी एनर्जी आपको भी नीचे लेके आती है। तो यू शुड, इफ़ यू आर इन टू दिस प्रोफेशन, इसके अंदर डिटैचमेंट बहुत ज़रूरी है कि भाई ये उसकी प्रॉब्लम है, वो उससे निकल जाएगी, बट इट शुड नॉट अफेक्ट यू एज अ पर्सन, एज अ एनर्जी ऑन दैट पॉइंट। Okay. है ना? Okay. ये ज़रूर Okay. ज़रूर इस पे थोड़ा ध्यान देना, कहीं ना कहीं है ना अपन अटैच हो जाते हैं। आई एम नॉट सो श्योर, बट एक बार आप प्लीज। Yes, Uh, yes, I do. Shweta, I do. Shweta, you'll have to understand. You'll have to understand one thing, that it is impossible to live without experiencing any kind of suffering. It is not possible at all. Hmm. And the best way to get out of this suffering is meditation, awareness, mindfulness, especially in the profession you are. Okay. Especially in the profession you are. So a lot of people, all the highly spiritual people recommend that being aware, being mindful, being meditating every time a lot more will make, it requires a lot of patience, it requires a lot of hard work, it requires a lot of persistence, but you have to keep doing it. Yes. आप क्या कर रही हो, आप अपने आप को अनकॉन्शियस करने के लिए हो सकता है ऐसी चीजों का सहारा ले रही हो जो नहीं लेना चाहिए। आप टीवी देखने लग जाती हो, या फेसबुक चेक करने लग जाती हो, या इंस्टाग्राम चेक करने लग जाती हो, और आपकी सफरिंग कम नहीं होती। यू हैव टू बी माइंडफुल, गेट आउट ऑफ दैट शिटी वर्ल्ड एंड स्पेंड टाइम विद योरसेल्फ, ट्राई टू गेट दैट श्वेता बैक, एंड देन थिंग्स विल मटेरियलाइज इटसेल्फ। Okay. Okay. प्लीज, I know, don't, your mind would want to, okay, now you're not feeling good, चल मैं इंस्टाग्राम देख लेती हूँ, मैं फेसबुक देख लेती हूँ। ये हो रहा है? हाँ, हो रहा है। तो प्लीज इन सारी बातों को, इनको, that's what I'm saying, you have to be aware. Get out of this shitty digital world where you only go and see others' life, and then you start developing another FOMO कि यार I am missing out on this, let me go this. Okay. FOMO का definition change कर लो अब, fun of my outing. Okay. It's no more that shitty word, but fun of my outing. So be with yourself. Try to bring that. So whole idea about doing this topic today was that it is very important that we all make balance between me time and the love you tell. I'm not saying please be selfish. I'm not saying please don't go out and meet people or just be with those people. There has to be a perfect balance for a good life. This is how we all can evolve. This is how we all can grow. बट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि मैंने तो त्याग ले लिया है, मैं दुनिया के साथ नहीं जाऊंगी, अब मैं मिलूंगी नहीं, मैं बैठूंगी नहीं। अगर आप ऐसा करोगे तो आप सिर्फ सफर करोगे। There has to be a balance. Life is all about balance, balance, balance. Okay. Okay. Thank you. Thank you. सुपर जी, सुपर सुपर। किसी का कोई और क्वेश्चन, एनी शेयरिंग, एनीथिंग? Before we go today, we have to dance, Ankit. चलो ग्रेट। मेरे कुछ क्वेश्चन हैं, आप सब जवाब दोगे क्या, इफ यू डोंट माइंड? मेरा यस और नो तो लिख दो आप चैट पे हो नहीं हो, यस नो, मुझे कैसे मालूम पड़ेगा? यस, ग्रेट।
सो मुझे है ना आप सब लोगों से उन लोगों का नाम चाहिए जिन्होंने आपको जीसी रेफर किया था, हु हैव रेफर्ड यू टू जीसी. कैन यू गिव मी दोज नेम्स? कि हु हैव रेफर्ड यू टू जीसी, किसने बताया था कि यार ये जीसी है, जीसी फैमिली है, जीसी कुछ है, कर लो, बहुत अच्छा है, लाइफ चेंज हो जाएगी. हु आर दोज पीपल? डू यू स्टिल फील ग्रैटिट्यूड टू देम? आपको क्या अभी भी उनको ग्रैटिट्यूड देने की इच्छा करती है कि यार आपने एक एडवाइस ने मेरी लाइफ बदल दी? डू यू स्टिल फील ग्रैटिट्यूड? क्या आप अभी भी उनको ग्रैटिट्यूड देते हो? या मुझे ये बताइए, आपने आपने अगर किसी को ज्वाइन कराया हो और उनकी लाइफ बदल गई हो, उनकी लाइफ चेंज आ गई हो, हाउ इज़ दैट फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड? मतलब आप, किसी ने आपकी लाइफ बदली या आपने किसी की लाइफ बदली और आप जब ग्रैटिट्यूड देते हो या ग्रैटिट्यूड लेते हो, हाउ इज़ दैट फीलिंग? आपको कैसा लगता है? हाउ डिड यू फील? मतलब हाउ इज़ योर फीलिंग? सुपर लगता है, सुपर सुपर, ग्रेट ग्रेट ग्रेट. सो मेरा एक क्वेश्चन है, आप अपना 2023 कैसा चाहते हो? डू यू वांट टू मेक 2023 रॉकिंग एंड अमेजिंग? रॉकिंग एंड अमेजिंग क्या आप बनाना चाहते हो क्या? Yes or no? How much of you believes which starts well, end well also? किसी चीज़ की अगर शुरुआत अच्छी हो तो वो होती भी बहुत बढ़िया है. How many of you really feel कि हाँ यार, मतलब जो जिस चीज़ की शुरुआत अच्छी होती है ना, वो अंत भी बहुत अच्छी होती है, मज़ा आता है उसके अंदर. We'll have a rocking time. सो मेरी और रवि भैया की अभी बात हो रही थी और रवि भैया का एकदम से रैंडम से फ़ोन आता है कि यार अंकित चल, लेट्स डू अ सेशन इन जनवरी. मैंने बोला यार जनवरी ठंड होती है, आप क्या बात कर रहे हो? सुबह 5, मतलब कड़ाके वाली ठंड, लोग उठ पाएंगे, कर पाएंगे, हो पाएगा? तो कितने लोग आप एक्चुअल में ये सेशन चाहते हो जनवरी के अंदर? क्योंकि मैं थोड़ा सा डाउटफुल था, बट रवि भैया के एक वर्ड से जो मुझे भी हिट करे कि यार अंकित, अगर एक ईयर की शुरुआत अमेजिंग हो ना, तो वो ईयर भी अमेजिंग चाहता है. तो है ना, वो बोलते हैं यार, बोले यार अब की बार है ना जनवरी करते हैं, तो हम जनवरी में रॉक करेंगे और पूरा साल अमेजिंग बनाएंगे. 2023 विल बी वन ऑफ द बेस्ट ईयर वी हैव. तो मैंने बोला वाओ, अगर आपका थॉट है तो फिर कोई नहीं, विल गो फॉर इट. सो कितने लोग, हाउ मेनी पीपल आर रेडी टू हैव अ सेशन इन जनवरी? सो इट डजेंट मैटर. देखो मैं ना यही समझता था, मैं जब मैजिक बुक पहली बार करी थी ना, तो मुझे लगता था कि एक बार मैजिक बुक हो गई, हो गया, लाइफ डन है, अब मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. बट जैसे ही मैंने 20 दिन 25 दिन छोड़ी ना, तो मुझे ना मेरी औकात याद आ गई कि भैया इसके बिना ना कुछ भी नहीं है. तो फिर मैंने दूसरी बार करी, फिर मुझे लगा कि अब हो गया यार, अब 2 बार कर ली. फिर 2 महीने बाद समझ में आ गया कि अंकित तेरी कोई औकात नहीं, इसको छोड़ना नहीं है. फिर तीसरी बार करी और फिर हर 2 या 4-6 महीने के गैप में कोई ना कोई चैप्टर उठा के पढ़ लेता हूँ या कर लेता हूँ, क्योंकि मालूम है इसके बिना है ना अलाइनमेंट नहीं है. कहीं ना कहीं क्या होता है, जैसे ही आपका 1 महीना रॉकिंग होता है, फिर आप मिस अलाइनमेंट होते हो और फिर वो वापस से आपको वो जो पुराने आपके बिलीफ सिस्टम है ना, वो वापस खींचने लगते हैं. तो इस बार है ना बड़ा सिंपल, सोबर, मज़ेदार सोच रहे हैं, बट आप लोगों से सपोर्ट चाहिए. 2 चीज़ों का सपोर्ट चाहिए. पहले चीज़ का सपोर्ट ये चाहिए कि एक तो पहली चीज़ का सपोर्ट ये चाहिए कि आप ये सेशन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो. दूसरा, आपसे मुझे ऐसे लोगों के नाम चाहिए, 3 लोगों के नाम चाहिए जिसकी लाइफ में आप इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते हो, जिनकी लाइफ के अंदर आप ये चाहते हो कि यार ये लाइफ में ना ये बहुत दुखी है एंड आई वांट टू रियली क्रिएट अ इम्पैक्ट इन दैट. सो आप सबका मेरे को यस चाहिए. देखो 2 तरीके हैं मैजिक बुक करने के, 2 तरीके हैं. पहला तरीका है डू इट योरसेल्फ, खुद कर लो. आपको लगता है आप खुद कर पाओगे, यस और नो? मैं बताता हूँ आपको, कोई बोले नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं है ना एनर्जी डाउन हो जाती है, बोरिंग सा फील होता है, मज़ा नहीं आता. और दूसरा तरीका है हमारे साथ कर लो, एनर्जी में कर लो, ग्रुप में कर लो. तो आप सबको मैं ये गूगल फॉर्म भेज रहा हूँ, मैंने ग्रुप पे डाल दिया है. आज मनाली को बोल भी दूंगा, वो सबको डाल देगी. आप बस अपना यस कि भाई आप कब चाहते हो, जनवरी के स्टार्ट में, मिड में या एंड में, प्लस आपके 3 ऐसे लोग, उनका नाम और मोबाइल नंबर जिनकी लाइफ में आप ये चेंज लाना चाहते हो.
जिनकी लाइफ में ये चेंज लाना चाहते हो, आप बस उनको इतनी सी जिम्मेदारी ले लो कि उनको लाके 7 दिन बिठा दो। 7 दिन बाद उनकी लाइफ चेंज होने की गारंटी मेरी। बट आपसे बस ये 2 चीज़ें चाहिए कि आप वो 3 लोगों के नाम और उन 3 लोगों की गारंटी कि वो 7 दिन आके बैठ जाए। 8वें दिन उनकी एनर्जी खुद उनको उठा के इस क्लब में लेके आएगी। एम आई राइट और रॉन्ग? यस और नो? सुपर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। सो 2023 ये मेरी और रवि भैया की तरफ से आपको एक गिफ्ट है। अमेजिंग दैट कि उस साल की शुरुआत के अंदर ऐसा रॉकिंग अपनी एनर्जी क्रिएट करे कि पूरे साल को है ना एकदम रॉकिंग बना दे। तो जस्ट पुटिंग अ फॉर्म, गूगल फॉर्म, एक बार आप गूगल फॉर्म भरो तो उससे हमारे को डेट का आइडिया पड़े कि किस डेट से चालू करना है, देन विल टेक इट फॉरवर्ड। रवि भैया या मैं अंकित और मेरी बात हो रही थी। अंकित बोला कि रवि भाई ठंड होगी बहुत, लोग कैसे उठेंगे सुबह को, इतनी सुबह सुबह कैसे, क्या होगा। तो मेरा सोचना ये था कि अगर ये अच्छा काम करना ही है तो जनवरी से अच्छा कुछ नहीं हो सकता, बिकॉज उस वक्त बहुत सारे लोग जिनको कुछ आइडिया नहीं है लाइफ में, गोल्स का, विजन का, उन लोगों को, नए लोगों को अलाइन करना और उनको 2023 के लिए रेडी करना, इट्स अ परफेक्ट टाइम, क्योंकि उनको पूरा साल उनके सामने होता है और सब अपने विजन्स और गोल्स और डिजायर्स तरीके से लिख सकते हैं विद अ गाइडेड प्रोसेस। सो दैट वे यू आर सेटेड फॉर दिस। और फिर अंकित का था कि बहुत ठंड होगी, बहुत कम लोग आएंगे, तो मैंने अंकित से यही बोला कि यार जो लोग सुबह को उठ नहीं पाएंगे वो अपने लाइफ को कैसे ठीक करेंगे। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि आप लोगों को लगता है कि ये स्टेटमेंट सही है कि जो सुबह को उठ नहीं सकते वो अपनी लाइफ को ठीक कैसे करेंगे? यस और नो? क्या लगता है आपको नीना जी? हैं पुष्पा जी, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? कुछ लोग आए थे कि हम सुबह को उठ नहीं सकते, आप प्लीज सेशन शाम को कर लो। बट फिर मेरे को ऐसा लगा कि यार जो मॉर्निंग में उठ नहीं सकते, जो अपना मी टाइम नहीं दे सकते, तो पूरा दिन तो वैसे ही दुनिया खा जाती है, इंस्टाग्राम खा जाता है, फेसबुक खा जाता है, तो वो लोग एक्शन कैसे लेंगे, वो लोग काम कैसे करेंगे? ये मेरी सोच है, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ये सोच सही है कि गलत है? You are asking me this question, right? तो सुबह उठने का तो ग्रेटिट्यूड में तो सबसे पहले है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना ही है। दैट वाज फर्स्ट ऑफ द क्लब हमने ग्रेटिट्यूड क्लब किया था, उसमें था कि सुबह उठना है, हमें ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी सोना है, जल्दी उठना है। So this is the first step to attain gratitude. True. So anyways, I think it's going to be a lot of fun. Yeah, habit तो डालनी पड़ेगी ना, and this is very good when you start getting up in the morning. I get up at 4 o'clock, so much you can accomplish. जैसे day start हुआ पूरा दिन वैसे ही चलता है, you know. Great, thank you so much for supporting me. चलिए, great. But हाँ, चलिए great. So I think it would be a lot of fun early in the morning in winters. बढ़िया अच्छी ठंड को एंजॉय करते हुए गरम गरम चाय के साथ. It would be a good session. Let's keep it simple. और इस बार प्लान कर रहे हैं कुछ प्रॉप्स लाने की. We've developed a lot of जैसे कुछ लोगों को मेडिटेट करने में प्रॉब्लम होती है. So we are working on developing a lot of tools to help people how to meditate. You know, it's a small wooden thing where you can just turn around your finger and you can start you can start concentrating, focusing. So जो लोगों के thoughts उनको इधर उधर ले जाते हैं, so we are trying to bring in a lot of props to promote gratitude in a very big manner. I'm sure all of you will be super excited because I was super excited when I started discovering that, when I started making those things. So I'm going to make it in my factory and I'm going to put it in front of the world that this is how gratitude can really become a super powerful emotion, and this is how you can cultivate gratitude in your life in a much faster way. So we are trying to make it this next session. पिछली बार वाले सेशन का फीडबैक था, कुछ लोग जो एडवांस लेवल वाले थे वो बोले कि सर बड़ा मजा आ गया, कोर वैल्यूज कुछ लोगों को नहीं समझ में आया. सो वी थिंकिंग कि एक एडवांस वर्जन अलग कर लेंगे और एक कब करेंगे मालूम नहीं, बट दिस सेशन लेट्स ट्राई फोकस ऑन द सिंप्लिसिटी. Let's keep it simple and let's try and you know
कूट कूट के ग्रेटिट्यूड लोगों के जीवन में डाल दें, सो दैट उनका लाइफ वैसे ही ठीक हो जाए। सो दिस इज हाउ, जो पुष्पा जी का अच्छा एग्जाम्पल था आज सवेरे। सो कुछ ऐसी एसेसरीज भी इस बार जनवरी में इंट्रोड्यूस करेंगे जिससे ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस करने में बहुत हेल्प मिलेगी। So this is how it is. We are working hard on it and we'll need your suggestions. So next alumni meet में आप लोगों के साथ चीजें शेयर करूंगा मैं। चलो ग्रेट, थैंक यू गाइस, थैंक यू। रवि भैया जाने से पहले मजेदार वाला सॉन्ग एक ही गाना था डाल दिया है, आप प्लीज भर देना गाइस, प्लीज, ओनली रिक्वेस्ट। अगर आपको लगता है कि हमने आपकी लाइफ में कंट्रीब्यूट किया है तो ये गूगल फॉर्म भरना फर्ज है अपना। हाँ प्लीज इग्नोर मत कर देना कि यार ठीक है छोड़ो, ये तो आता रहता है, फॉर्म आते रहते हैं।